कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हारो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली। हरि दी कथा हरि दी गल इस संसार तो वख है, न्यारी है, निराली है। निराली तो मुराद जो संसार नाल मेल नहीं खाती, जगत नाल मेल नहीं खाती, निराली है, न्यारी है। मनुख नूं परिपूर्ण परमात्मा ने अस्थूल रूप दे ये तन दिता है, सूक्ष्म रूप दे मन दिता है। सुख चाहिदा है तन नूं, आनंद चाहिदा है मन नूं। लेकिन मनुख नूं इतनी समझ नहीं है, ये सुख नूं ही आनंद समझ लैंदा है। बस भुलेखा इत्थों पै जाता है। तो होंदा की है, सुख ते मिल जाता है, बथेरियां नूं मिलिया होया है। तन नूं भोजन चाहिदा है, मिलिया है। तन नूं कपड़े चाहिदे ने, मिल गए ने। रहण नूं मकान चाहिदा हैगा है। परिवार दे संबंध चाहिदे ने, जुड़े हुए ने। जिंदगी दी लोड़ां पूर्ति करन वास्ते धन चाहिदा है। सुख ते है, लेकिन मानसिक तल ते बड़ा भारी कलेश है। ये सारे दा सारा सुख भी बेमैनी हो जाता है, बेमैनी। उस मानसिक कलेश दे उस मानसिक बेच ये सुख सुख नहीं रह जाता। क्यों? कलेश बहुत वड्डा होवे ते सुख दी सीमा होवे। सुख दी सीमा क्यों है? बड़े ध्यान नाल सुनना एक एक नुकता। शरीर नूं जो परिपूर्ण परमात्मा ने ज्ञान इंद्रे दिते ने, इन्हां दी सीमा है। अखां दे वेखण दी सीमा है, कानां दे सुणन दी सीमा है, ज़बान दे रस मानण दी ते बोलण दी सीमा है, नासका दी सीमा है, बुद्ध दी सीमा है, हत्थां पैरां दे चलण ते करन दी अपनी एक सीमा है। जद भी किसी रस की सीमा आ जाती है, रस बेरस हो जाता है। शायद आप गहराई न लो। जैसे एक भोजन मनुख ने छकिया, बड़ा रस आया,
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਈ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਖਲੜੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਗੈਪ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਸ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਿਬਾਰਾ ਸੁਣੀ, ਚੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਦ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਵੇਖਣਾ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਪ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਜਦ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
दीदार में नुमाई वो परहेज में कुने। ऐ खुदा तू दीदार भी देना है, दर्शन भी देना है, तेरी झलक भी मिलती। दीदार में नुमाई वो परहेज में कुने। फिर तू परहेज कर लेना है, पर्दा कर लेना है, बुरका कर लेना है, तो छुप जाना है। जब तू झलक दे के छुप जाना है, जब तू दर्शन दे के पर्दा पा लेना है, बुरका कर लेना है। दीदार में नुमाई वो परहेज में कुने। ये झलकियां छोटियां छोटियां कई दफा नाम अभ्यासियां नूं प्राप्त होंदियां ने। कदी कदी मन सुरत शब्द दे बहुत नेड़े चली जाती है, माड़ी जिहां खेड बन जाती है। ऐसा मेरा कियास है कि हर शहर दे 8-10 बंदे तो इस तरह के होंदे ने जिन्हां नूं ये झलकां मिलदियां ने। पर ये झलक इस तरह मिलती है जिवें अंधेरी रात दे बदलां च कोई बिजली चमकी है, बस एक सैकंड लई चमकी ते गई। इस तरह के मनुख करीबन करीबन हर शहर दे चाहुंदे ने, पर जिन्हां दी जिंदगी च पूर्ण चानना हो ही गया, हुण अंधेरा नहीं है, ऐसे मनुख हर शहर दे च नहीं आउंदे, हर शहर दे च नहीं आउंदे। ये झलक शेख सादी नूं भी मिली है, ताई वो कह रहे हैं दीदार में नुमाई वो परहेज में कुने। बाजार ख्वैश आतिश मां तेज में कुने। ऐ मेरे खुदा तू दीदार देना है, फिर बुरका कर लेना है, छुप जाना है। इंज ना कर। क्यों? बाजार ख्वैश आतिश मां तेज में कुने। जद तू छुप जाना है, साडे वेखण दी अग होर भड़क उठती है और तू महंगा भी बड़ा हो जाना है और साडा हिरदा तड़प के रह जाता है। तेरा मुल चुकाना औखा हो जाता है। भाव उस तरह की झलक नूं फिर पैदा करना औखा हो जाता है। तू इंज ना कर। बुरके च क्यों चला जाना है, पर्दे च क्यों चला जाना है? इस गल नूं खोलिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल। वो कहने तोके हम हजाबे खुदी यार खुश लका चे कुनत। ऐ शेख सादी जद तैनू खुदा दी झलक ना मिले तो खुदा ने बुरका नहीं किया, वो पर्दे विच नहीं गया, तेरी अखां ते कोई पर्दा पै गया होगा। तू अपना पर्दा चुक, उते हाजिर नाजर है, तेरे ते पर्दा पै गया होगा, तेरी अखां ते कोई पर्दा पै गया होगा। तू अपना पर्दा हटा। मैं फिर अर्ज करा, आइंस्टीन ने पदार्थ का पर्दा हटाया ते पदार्थ दे राज दुनिया दे सामने रख दिते। भगत नूं ते अपने मन तो ही पर्दा हटाना पैंदा है। परमात्मा ते कोई पर्दा नहीं है कोई साजन पर्दा तोरा। महाराज दी बाणी कहती है प्रभु है कोई ऐसा पर्दा जिहड़ा तैनू छुपा लवे। अगर कोई पर्दा परमात्मा नूं छुपा सकता है तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं है, पर्दा वड्डा है। आप सारे सियाणे हो, फिर पर्दा वड्डा है। फिर ते पर्दे की पूजा करिए, रब की पूजा करने की की लोड़ है? क्योंकि रब तो भी एक वड्डा है कि पर्दा जिहड़ा रब नूं भी छुपा देंदा है कोई साजन पर्दा तोरा। कोई तेरा पर्दा नहीं है, तू बेपर्द है। पर कीता की जाए मनुख दी अखां ते पर्दा पिया है, मनुख दी अखां ते पर्दा पिया। जिस दिन मनुख अपनी अखां दा पर्दा चुकदा है, भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने ब्राह्मण मुश्ताक के बुत
जाहिद फिदाए खान का, हर कुजा जामे मुहब्बत दी दैम सरशार अस्त। ब्राह्मण वेखण दी कोशिश करदा है मंदिर दे जाके मूर्तियां दे च रब नूं। मुसलमान वेखण दी कोशिश करदा है मस्जिद दे जाके खुदा नूं। पर नंद लाल कहंदे ने मैं ते जिधर वेखदा खुदा तो बिना होर है ही नहीं कुछ। हर कुजा जामे मुहब्बत दी दैम सरशार अस्त। मैं ते सरशार हो गया, मैं ते मस्त हो गया, ते हर तरफ हो ही है। गुस्ताखी माफ मैनू दौरान देना, अगर ना दिखाई देवे साड़ी अखां ते पड़दा है, साड़ी अखां ते पड़दा है। एक शायर इसनों इंज कहंदा है, हर जर्रे में उसका ही ज़हूर है, तुझको नजर न आए तो ये किसका कसूर है। फिर ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ किस नूं ठहराओगे। एक होर आलम भी बड़े आलमाना ढंग नाल कहंदा है, बड़ी कीमती गल कहंदा है, ज़ौक। वो कहंदा है बेपर्द इतना कि हर जर्रे में है उसका ज़हूर। ध्यान नाल सुनना, बेपर्द इतना कि हर जर्रे में है उसका ज़हूर, बापर्द इतना कि नजर तक आता नहीं। दोवें गल्लां कह गया। मैं फिर दोहरावां, बुजुर्ग समझणगे इस पुरानी भाषा नूं। बेपर्द इतना कि हर जर्रे में है उसका ज़हूर, बापर्द इतना कि नजर तक आता नहीं। बेपर्द इतना है, व्यापक है, हर पासे ओही है, पर पर्दे दे च इतना है दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। ये भी शेख सादी की तरह कह रहा है। नंद लाल कहते हैं उस पर कोई पर्दा नहीं, तू अपना पर्दा हटा। तो के हम हजाबे खुदी यार खुश लका चे कुनत। इत्थे हर मनुख नूं अपना पर्दा हटाना पेगा। पर्दा अज्ञानता दा है, पर्दा हंकार दा है, पर्दा वासना दा है। इक्को ही पर्दा काफी होंदा है, सैकड़े पर्दे मनुख दी अखां ते पए होए ने, कोई एक पर्दा पिया होया। किधर एक पर्दा हटा भी लवे, दूजा है, तीजा है, चौथा है। कई दफा तो जिंदगियां गल जांदियां ने, पर्दा हटदा ही नहीं। और मनुख दीदार तो बिना जिंदगी गवा देंदा है, पूर्ण होए बिना जीवन गवा देंदा है। तो हुण मैं दोबारा दोहरावां, तन नूं सुख चाहीदा, मन नूं आनंद चाहीदा। सुख तां मिलदा है पदार्थ नूं अपने अनुकूल कर दईए। ते सारे सुख इंद्रियां दे सुख ने। कुछ वेख के सुख मिल जाता है, कुछ सुन के सुख मिल जाता है, कुछ सूंघ के सुख मिल जाता है, कुछ स्पर्श करके सुख मिल जाता है, कुछ चख के सुख मिल जाता है। और केड़ा सुख है इस तो इलावा? सुख दसो, और केड़ा सुख है? कहते ने स्वर्ग दा राजा इंद्र है। इंद्र ते इंद्र दी व्याख्या यह है, जिहदे कोल इंद्रियां दा सारा रस मौजूद है वह इंद्र है, और जिहदे कोल इंद्रियां दा सारा रस मौजूद है वह स्वर्ग दे च है। वह स्वर्ग दे च स्वै वर्ग, अपने वर्गा वर्ग। अखां नूं जो वेखण वास्ते चाहिदा हैगा, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ जो सुनन वास्ते चाहिदा है, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ जो रस चाहिए ने हैगे ने मौजूद ने, खलड़ी ਨੂੰ जो स्पर्श करन वास्ते चाहिदा है, नासकां ਨੂੰ जो सूंघण वास्ते चाहिदा हैगा। इंद्र इंद्र अज पृथ्वी और शरीरक तल ते स्वर्ग बन गया है, मानसिक तल ते नरक बन गया है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਤਨ ਨਰਕ ਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਸਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਵਰਗ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਨ ਨਰਕ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਸਵੈ ਵਰਗ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तमाम रसां का अभाव, चिंता ही चिंता है, व्याकुलता ही व्याकुलता है मन दे तल पे, फिक्र ही फिक्र है। नरक नरक। बड़े बड़े लोग जो थानों स्वर्ग दे च रहिंदे दिखाई देन, उन्हां दा मन नरक दे च है। ये भी मैं अर्ज करदे हां, नरक दे च। इस कुंभी नरक दे चों मन नूं कढना है, और हर मनुख नूं खुद करना पएगा, किसी विज्ञानक ने नहीं करना। आइंस्टाइन ने पदार्थ तो पर्दा चुक के करीबन करीबन पदार्थां दे सुख सारियां दी झोली दे च पा दित्ते। सानू बिजली लई, इलैक्ट्रिसिटी लई कोई आविष्कार करन दी लोड़ नहीं, तजर्बे करन दी लोड़ नहीं। स्विच ऑन ऑफ करदे हां, बत्ती जल जाती है, बुझ जाती है, सारे सुख मौजूद ने। पर जिस बेचारे ने खोज की थी तो कई साल लगे आ रहे, कितनी मेहनत की थी उसने, कितनी साधना की थी, कितनी तपस्या की थी, और कितनी दफा आविष्कार उसके सफल भी नहीं हुए। एक मनुख की मेहनत ते उहदा फल सारियां दी झोली च पै गया। पर एक कबीर की मेहनत, उन्हें अपने उपरों पर्दा चुकया ते प्रभु की झलक मिल गई, महान आनंद की प्राप्ति हो गई। लेकिन कबीर की मां कोल भी आनंद नहीं सी, कबीर कोल सी। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारक कैसे जीवे रगराई। कबीर दी ते मां भी ज़ारो ज़ार रोंदी है, इन्हें काम कार छड्डिया होया है, पता नहीं बच्चियां दी पालना किवें होएगी, घर दा गुजारा किवें चलेगा। कबीर दी मां ते ज़ारो ज़ार रोंदी है, वो आनंद कबीर कोल है, कबीर दी मां कोल नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कहंदे ने धन समाजिक है, एक बंदे नूं धन मिल गया है तो उसकी पत्नी नूं भी मिल गया, उसदे बच्चियां नूं भी मिल गया, सारियां नूं मिल गया, सारे परिवार नूं मिल गया। धन समाजिक है, इंद्रियां दा रस समाजिक है, आत्मक रस समाजिक नहीं है। एक नूं मिल गया तो सारे परिवार नूं नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैनूं कहण देना, बड़े बड़े धार्मिक घरां दे जो एक सिरमौर मनुख धार्मिक है, बाकी मैंबर महान अधार्मिक देखे गए हैं। बड़े बड़े अधार्मिक घरां दे जिहड़ा सिरमौर बंदा अधार्मिक सी, बड़े बड़े धार्मिक देखे गए हैं। बिल्कुल अधार्मिक है हरनाकश, उहदे घर प्रहलाद है। हैरानगी है, हैरानगी है। बिल्कुल अधार्मिक है ध्रुव दा पिता, पर ध्रुव नूं देख के हैरानगी आउंदी है। और इसे तरीके दे नाल खोज करोगे
वक़्त दे अवतारी पुरुष ने धन गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा जहांगीर नाल साजिश करदा है। वो बाद विच फौज चढ़ा के लियाया गुरु अर्जन देव जी ते, भरा नाल लड़दा रहा, झगड़ा करदा रहा। धर्म समाजक नहीं है, परमात्मा का नाम समाजक नहीं है। एक नूं मिल गया तो बस एक नूं ही मिले, बाकियां नूं नहीं है। बाकियां नूं प्रेरणा लैनी पैगी, बाकियां नूं खुद कुछ करना पेगा। अठे पैर नाम की मस्ती विच रहण वाले गुरु नानक, माता तृप्ता जी कहंदियां ने पुत्र ते सुधाई है। ये ते सुधाई है, ये ते बिल्कुल सुधाई है। ते पिता 20 रुपया के बदले थप्पड़ मारदा है ते मखट्टू है। ये तो कोई काम ही नहीं करता। बड़े इसनूं गहराई नाल लै लेना। धर्म समाजक नहीं है। कोई पूरे दा पूरा मुल्क धार्मिक नहीं होंदा, कोई पूरी दी पूरी कौम धार्मिक नहीं होंदी, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होंदा। व्यक्ति धार्मिक होंदा है, एक मनुख धार्मिक होंदा है। लेकिन मैं अर्ज कर सकते हैं, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धनवान हो सकती है। जैसे यहूदी कहते हैं यहूदियों विच मुफलसी नहीं है। इस वक्त दुनिया की सब तो टॉप की धनवान कौम यहूदी ने। दुनिया की सारी इकोनमी ते यही छाए हुए ने और वड्डे व्यापारी यही ने, चोटी दे साइंटिस्ट यही ने, चोटी दे धनवान यही ने। कोई पूरी कौम ते धनवान हो सकती है, कोई पूरी कौम धार्मिक नहीं आती। ये भी मैं अर्ज करती। कोई पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आता, एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति यही कारण है सारी दुनिया दे धन ते वधदा जा रहा है, क्योंकि धन समाजक है। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत है। सिर्फ एक नूं मिलता है, सिर्फ एक नूं। ज्ञान मिले है, प्रभु दे नाम दा रस मिले है, एक नूं। उस एक तो अगर परिवार प्रेरणा ले ले तो हो सकती है गल। पर अक्सर हजरत ईसा कहते ने कि महापुरुषों तो 3-4 बंदे ते वांझे ही रह जाते हैं। प्रथम उसदे मां बाप, दूजे उसदे शरीक, तीसरे उसदे शहरवासी, चौथे उसदे लंगोटिए यार। वो रह जाते। वो तो कहते लै कल तक साडे नाल खेडदा सी, अज संत बनिया फिरदा है। क्योंकि ईसा नूं अपने ही शहर दे ठुकरा दिता गया सी, ठुकरा दिता गया सी। ईसा नूं अपनी कौम ने ही ठुकरा दिता, यहूदियां ने ठुकरा दिता। सूली ते यहूदियां ने चाड़िया, अपनी कौम ने ही नहीं मनिया, अपने शहर ने ही नहीं मनिया, अपने शरीका ने ही नहीं मनिया। बेदियां ने ही कह दिता गुरु नानक नूं भूत ना है, बेताल है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, बेदियां ने ही कहा, अपनी कौम ने ही कह दिता। पिता ने ही कह दिता मखट्टू है। गुस्ताखी मां माता ने ही कह दिता ये सुधाई है। सुधाइयां दी गल्लां करता है। एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, अवतार हो सकता है। सारा परिवार नहीं आता, सारी कौम नहीं आती, सारा देश नहीं आता। धन समाजक है, एक नूं मिलिया ते सारियां नूं मिल गया, सारे परिवार नूं मिल गया। समाजक है। पिता राजा है तो पुत्र अपने आप राजकुमार हो गए, पत्नी अपने आप राणी हो गई। एक दे राजा होण नाल दूजी अपने आप ही राणी हो गई, बच्चे अपने आप ही राजकुमार हो गए ने, कुछ भी नहीं करना पिया। राज पाठ धन संपदा सारी दी सारी समाजक है, धर्म समाजक नहीं है। एक नूं मिल गया तो बस एक नूं मिले, उस तो कोई प्रेरणा ले ले तो ले ले, तां खेड बन सकती है। बनारस वासियों ने, अपने शहर वासियों ने कबीर तो प्रेरणा नहीं ली, बल्कि कबीर नूं बनारस चों कढ़ दिता सी, शायद आपनूं पता होवे।
आखिरी समय कबीर ने मगहर दे च बतीत की। उन्हां दा चलाना, उन्हां दी देही दा गमन मगहर दे च होया सी। बनारस वासी ते रोज लड़ते रहे, इल्जाम लाते रहे। शहर वासियों ने ही कबीर नूं महान करके नहीं मनिया। शहर वासी की कहते ने, कबीर आप कहते ने, लोग कहें कबीर बौराना, इत्थे पागल है। ये पागल साडे शहर दे च रहिंदा पिया। सारे बनारस ने कह दिता पागल है। कि हुण कौन दसे, कोई ते बंदा है जिहदे कोल रब दी खबर है, जिहदे कोल रब दा पता है। इसनों एक बहुत वड्डा आलम बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा है, ध्यान नाल सुनना। किससे पता पूछे मंजिले जाना, ऐ मेरे रब तेरा पता मैं किस कोल पूछा। किससे पता पूछे मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिहदे कोल तेरी खबर सी वो ते खबर दसन जोगा ही नहीं सी। कहंदा अकथ अकथ, मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जे हों जाना आखा नाई, नहीं कहना। महाराज कह दो तो सतगुरु कहते कहना कथन ना जाए। जिन्हें जान लिया वो कहता मैं बयान नहीं कर सकता, और जेड़े बयान कर रहे ने इन्हों कख पता कोई नहीं। आम मनुख दुविधा च पै जांदा। किससे पता पूछे मंजिले जाना, ऐ मेरे खुदा तेरा पता मैं किस कोल पूछा। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिहदे कोल तेरी खबर है सी, तेरा पता है सी, वो ते ये कहने लगा मैं बयान ही नहीं कर सकता। क्या हो कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाए। कारण जबान दी अपनी सीमा है ते असीम दी प्राप्ति हुई है। अखां दे वेखण दी अपनी सीमा है तो असीम दी प्राप्ति हो गई है। कन्नां दे सुनन दी, दिमाग दे समझण दी अपनी सीमा है, असीम दी प्राप्ति हो गई है। इस वास्ते हर भगत ने कह दिता है, नहीं कह सकते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, आप कहते ने कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं नहीं कह सकता, मैं की बयान करा। कितना मैं कथन करा, कितना मैं कथन करा, मेरा कथन छोटा रह जाता है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। अवतारी पुरुषों ने बहुत कुछ बोलिया, उन्होंने बोलों के प्रभु टपकदा है, झलकदा है। फिर भी वो कहते ने क्या हो कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथना जारी। भगत कबीर भी कहते ने हर की अकथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। तो हुण मैं दोहरावां, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करिए सुख मिलता है, सुख मिलता है। पर इस सुख की अपनी सीमा है कि जैसे सुख अपनी सीमा ते पहुंचता है, सुख सुख नहीं रह जाता, बेरस हो जाता है। इंद्रियां दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। मैनू चंगी तरह याद है, दास दे नाल संत मथुरा सिंह एक निर्मले महापुरुष आउंदे सन। उन्होंने किधरे भिंडियां की सब्जी बड़ी चंगी लगती ते खटक दी गल है, संगतां नूं पता चल गया। असी 5-7 दिन रहना सी। उस सवेरे भिंडी, शामी भिंडी, दूजे दिन भिंडी, चौथे थाली एक दिन परे सुट दी। कहने लगे मूहों पै गई ने, ये खेड़ा ही नहीं छड्डी। हद हो गई, इतनी स्वादी थानू लगदियां सन, ये बेस्वादी क्यों हो गई। किसी भी इंद्रे दे रस नूं बार बार रिपीट करो, बेरस हो जाए।
रस बनया रहे, कुछ दिन का गैप चाहिए, इसका अंतराल चाहिए। हर रस बेरस हो जाएगा। इको ही रस है जो कदी बेरस नहीं आता, कि नाम रस, परमात्मा का रस। क्यों? असीम है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, इस वास्ते महापुरुषों ने कहा है, जो कुछ असी जाने है, जानन नूं होर कुछ है, जो कुछ असी माणे है, माणन नूं होर कुछ है। पर यह किवें प्राप्त होवेगा? अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करना है। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। मनुख दा अज दा हंकार चरम सीमा ते, क्योंकि पदार्थ नूं अपने अनुकूल करन दे सफल हो गया है। कदी कदी कृष्ण जरूर हो जाते हैं और मनुख दंग रह जाता है भी सब कुछ नूं मैं अपने अनुकूल करता पिया, लेकिन फिर भी मैं देखदा किधरे किधरे पदार्थ प्रतिकूल होके मैनू तबाह कर जाता है। कितना ही विज्ञान उन्नति कर लवे, कितनी साइंस उन्नति कर लवे, जैसे भौचाल आया गुजरात देश, अद्धा गुजरात तबाह हो गया और हजारां जाना चलियां गई। आप सुन के हैरान होवोगे, एक भी गुरुद्वारे दी दराड़ नहीं पई, चाहे वह गुरुद्वारा अहमदाबाद दा सी, भावनगर दा सी, गांधी धाम दा सी, राजकोट दा सी, सही सलामत आले दुआले दियां बिल्डिंगां गिर गई। चंगी तरीके नाल मैनूं याद है, 25 तरीक तक अहमदाबाद दे सी, सारे गुजरात दा भ्रमण करके उस साल दी गल है, और 5 सिंह साहिबान तख्तां दे भी नाल सन, 11 रागी जथे सन। गुरुद्वारे दे कोल बिल्डिंग उस दे ठहराया गया, 7-8 फ्लैट सन, उन्होंने ठहराया। 25 तरीक शाम तक असी उत्थे सी, शाम नूं निकल गए, 26 नूं सवेरे पहुंचा लाया ते पता चले अद्धा गुजरात तबाह हो गया। और जिस बिल्डिंग च असी ठहरे सी वो ढेरी हो गई, सारे ठहरे से वो ढेरी हो गई। गुरुद्वारे नूं दराड़ नहीं आई, 5 मंजिला, लंगर चलता रहा कई महीने उत्थे ही, गुजरातियां नहीं, सारे जो है उन्हां पीड़तां लई। इसनूं इंज कहंदे ने, कुछ कर्म सांझे आउंदे ने, सांझे आउंदे ने, और कर्मां दा संजोग बन जाता है। जो मैं कर्म कीता उस तरह का दूजे ने भी कीता, तीजे ने भी कीता, चौथे ने भी कीता, 5वें ने भी कीता। कर्मां दी सांझ कई दफा कर्म करन वालियां दी सांझ बना देंदी है, उन्हां नूं भी इकट्ठा कर देंदी है। इसनूं बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि कई दिनों से यह भी एक प्रश्न चल रहा है। जैसे कईयां दे नैन नक्श मेल खा जाते हैं, कईयां दा सुभाव मेल खा जाता है, कईयां दी आवाज़ मेल खा जाती है, इहदी आवाज़ ते फलाणे नाल मिलती है, इहदी चाल ते फलाणे नाल मिलती है, इहदे नैन नक्श ते फलाणे नाल मिलते हैं, इहदा सुभाव ते फलाणे नाल मेल खांदा है। कर्मां दी सांझ भी कईयां नाल मेल खा जाती है। जो मैं करता रहा, जो मैं सोचता रहा, होर भी सोचते रहना, होर भी करते रहना। ते कर्म बीज है, कर्म बीज है। इन्हां बीजां दे चों कर्म असी हज़ारां तरह के करते हैं, फल सिर्फ 2 ही निकलते हैं, तीजा चौथा फल नहीं निकलता। 2 ही फल निकलते हैं, दुख ते सुख, और कोई फल नहीं है। दुख ते सुख फल है, कोई फल नहीं है। कर्म असी हज़ारां तरह के करते हैं, सोचनी साड़ी हज़ारां तरह की होवेगी, लेकिन फल ते 2 ने, सुख ते दुख। सुख का मतलब है कोई कर्म सही सी, सोचनी सही सी,
दुख का मतलब है कुछ कर्म गलत सी, बस इतनी गल है। सही कर्म वालियां दी भी सांझ बन जाती है, अशुभ कर्म करने वालियां दी भी सांझ बन जाती है। जद कर्मां दी सांझ बन जाए तो कर्म इक्को जिहा होवन, जिवें मैं जो बीज बोए सन दूजे ने भी खेत दे बोए, तीजे ने भी खेत दे बोए, इक्को समय फलीभूत होए ने, क्योंकि बोए इक्को समय सन, तो फलीभूत इक्को ही समय होए ने। तो गुस्ताखी माफ कई दफा हजारां ते लखां दी ये महामारी कर्म सांझे हो जाते। इन्हूं इंज ना समझना अचनचेत हो गया, अचनचेत कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जगत दे सब कुछ विधानक होता है। इन्हूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिन्ना मरना भाई। अहमदाबाद विच कतलेआम शुरू की थी बाबर ने, लेकिन फिर भी कुछ बच गए। मरदाना पुछदा है, महाराज इन्ने मारे गए फिर भी ये ते बच गए ने। महाराज कहते जिनकी चीरी दरगे पाटी, जिन्हां दा जीवन का चोला दरगाह तो फाड़ दिता गया, वो ही गए, वो ही गए। गुरु नानक देव जी, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिन्ना मरना भाई। जिन्हां दे उत्ते इस तरह की मोहर लग गई, कर्म सांझे हो जाते हैं, तो कर्मां दा फल भी सांझा। जो मैं बीज बोया सी फलीभूत है, दूजे ने बोया सी वो भी उसे समय, इक्को समय किधरे बीज बोए गए, इक्को ही समय वो फलीभूत होए ने। प्रकृति कई दफा इस तरह के सारे कर्मां नूं इक्को ही समय फैसला करती है। जगत विच गैर विधानक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ विधानक ढंग नाल होंदा है, सब कुछ नियम पूर्वक होंदा है। अगर कह दो नहीं है, अचनचेत उंज ही हो गया, फिर कोई परमात्मा नहीं है, फिर कोई ईश्वर नहीं है। ये भी महसूस करते हैं। ऐसा भी होया है गुजरात देश, उचियां उचियां बिल्डिंगां गिरियां ने, 8-8 10-10 मंजिलियां, 10वीं मंजिल तो गिर के भी किसी को कुछ खराश भी नहीं पहुंची। वो भी है, देख के अजूबा होया जब मैनू गांधी धाम दे दिखाया। एक सज्जन कहने कि 10वीं मंजिल बिल्डिंग थले आ गई है तो बचे, इनू खराश तक नहीं पहुंची, इनू चोट तक नहीं आई। ये एक हैरानगी दी जो है गल है, कर्मां दी सांझ भी बन जाती है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करिए शरीर नूं सुख मिलदे ने, स्वयं परमात्मा दे अनुकूल होइए ते आनंद मिलदा है, आनंद मिलता है। सुख दुख दे च बदल जाता है, कोई ऐसा सुख नहीं जो दुख दे च बदले ना। कदों दुख दे च बदलता है, जब सुख अपनी सीमा ते पहुंच जाए। जैसे मैं हुण फिर उदाहरण दे दिया, एक कवि कविता थानू सुनावे, बड़ा रस आया है, बहुत रस आया, ते ओ कवि हुण आखदे मैं थानू दोबारा सुनाण लगा, अद्धा रस खो गया, खो गया। ते हुण ओ कवि आखे हुण मैं थानू तिवारा सुनाण लगा, क्योंकि थानू रस अजे आ रहे हैं। 3 हिस्से रस खो गया। ते ओ जिद करन लग पवे, ढीठ होवे, आखे हुण मैं थानू चौथी दफा सुनाण लगा, रस सारा खो गया। ते हुण ओ जिद करे, हुण मैं थानू 5वीं दफा सुनाण लगा, सुख दुख दे च बदल जाएगा। हुण मनुख दुखी होवेगा, परेशान होवेगा, हद हो गई। हुणे ते रस आ रहा सी, सुख आ रहा सी, सुख ही दुख बन गया। किहड़ा सुख दुख बन जाता है जब सुख अपनी सीमा ते पहुंच जाता है, सीमा ते पहुंच जाता है। हर सुख सीमा ते पहुंचदियां दुख बन जाता है। आनंद कदी दुख नहीं बनता, क्यों? परमात्मा की सीमा नहीं, आनंद की सीमा नहीं है, सीमा ही नहीं है, वधदा ही जाएगा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना गाढ़। किसी भी इंद्रे दे रस नूं बार बार रिपीट करो, बेरस हो जाएगा। परमात्मा दे नाम नूं बार बार रिपीट करो, रस वधदा जाएगा, वधदा जाएगा, वधदा जाएगा, बशर्ते किसी दिन सुरत जुड़ जाए।
किसी दिन जुड़ जाए, फिर रस ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। यही कारण है कि दुनिया के धर्म ग्रंथों के टीके एक नहीं ने। शायद मैं अर्ज कर चुकिया कि नहीं, 50-60 टीके जपजी साहब के हैगे ने। उदासियां ने कीते ने, निर्मलिया ने कीते ने, संप्रदायी ज्ञानिया ने जपजी साहब के टीके कीते ने। महाराजा फरीदकोट ने टीका करवाया, जिन्हों फरीदकोटियां का टीका कहते हैं। भाई वीर सिंह ने किया, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने किया, ज्ञानी हरवंश सिंह ने किया, सोडी तेजा सिंह ने किया, अनमतियां ने किया, आचार्य विनोबा भावे ने किया, स्वामी कृष्णानंद ने किया और आचार्य रजनीश ने किया। अनमतियां ने भी टीके किए हैं। ख्वाजा दिल मुहम्मद ने किया, मुसलमान ने जपजी साहब का नज़म दे टीका किया। हुण ये 50-60 टीके ने, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता, उक्की नहीं खाता। थोड़ी जिहा तर्क दृष्टि, तर्क बुद्धि रखण वाला मनुख कह देगा एक ठीक हो सकता है, बाकी नहीं। ख्वाजा दिल मुहम्मद ठीक हो सकते हैं, कृष्णानंद गलत ने। कृष्णानंद ठीक हो सकते हैं, आचार्य विनोबा भावे गलत ने। आचार्य विनोबा भावे ने बकायदा व्याख्या भी लिखी है, मन्ने मग न चले पंथ। ये उत्ते उन्होंने 10-15 सफ़े लिखे ने। जो एक दफा प्रभु को मन लेंदा है, उहदा कोई पंथ नहीं आता, इंज कहते हैं आचार्य विनोबा भावे। ये टीका हिंदी दे है। मैनू कहने लगा, हमने भी छोटी सी अकल से जपजी साहब को खोलने की कोशिश की है, आप देखें हमने कहाँ तक खोला है। मैनू इंज कहा सी, बहुत पुरानी गल है, इंदौर की। ये 50-60 टीके एक दूजे नाल मेल नहीं खाते। जो आचार्य विनोबा भावे ने लिख दिता उस तो बिल्कुल उल्टा है रजनीश। जो रजनीश ने लिख दिता है कृष्णानंद नाल मेल नहीं खाता। जो कृष्णानंद ने लिखा है वो फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खाता, कोटियां 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 नाल मेल